हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एडिटोरियल आईएएस। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 21A डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 21A जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन की। यहाँ मैं दो सवाल खड़े करने वाला हूँ। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस स्लाइड, एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट आई एम रेजिंग इज कि राइट टू एजुकेशन को ये 21A के अंदर ही क्यों डाला गया। इट कुड हैव बीन 20A एज वेल, इट कुड हैव बीन 19A एज वेल, और इट कुड हैव बीन 22A एज वेल, और सम अदर आर्टिकल A as well. So first question जो है what is this meaning of A? The meaning of A और किसी भी आर्टिकल के पीछे अगर A, B, C, D अगर लगा हो so you can easily deduce कि वो आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, right? At the time of commencement of Indian Constitution, that is in 1950, that article was not part of Indian Constitution. So अगर 21A was not part of Indian Constitution in 1950, that means right to education was also not part of, or right to education was not justiciable. So yes, your interpretation is correct. Right to education जो आज हमारे पास है, and right to education की जब मैं बात कर रहा हूँ, it is not going to talk about professional education. It is not going to talk about technical education, that BTech or BE or some MBA. No, that kind of education. Because right to education को अगर fundamental right के अंदर डाला गया है, जस्ट अ मोमेंट, दैट इज जस्टिसिएबल इन नेचर, तो आप ड्रैग कर सकते हो स्टेट को, अगर स्टेट वो राइट टू एजुकेशन। तो इसलिए जो राइट टू एजुकेशन की जो यहाँ बात की गई है, दैट इज फॉर 6 to 14 years ऑफ एज ग्रुप, एंड दैट इज ओनली फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट फॉर द प्रोफेशनल एजुकेशन और नॉट द टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज योर ग्रेजुएशन और योर पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा और दैट काइंड ऑफ डिग्री, ये उसकी बात नहीं कर रहा है। सो दैट इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन was कि why it is under article 21A or 21 not under article 20 or not under article 19। so उसका ये जवाब है कि देखिए ये right to education है। What is this article 21 dealing with? So article 21 actually deals with right to life and personal liberty। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं article 21 के ऊपर। If you have not watched that video, so right to life का you can watch that video into the playlist। right to life का ये बहुत सारे एम्बिट को जो है कंटिन्यूअसली इस जुडिशरी ने एक्सपेंड किया है अपने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट केसेस के इंटरप्रिटेशन के दौरान। आज के डेट में राइट टू लाइफ का ये सभी पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ऑल दीज आर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ऑल दीज थिंग्स हैज बीन डिस्कस्ड इनटू व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल 21। सिमिलरली along with all these right, you will notice here is one right, that is primary education, right? So during one interpretation in 1993, Supreme Court asserted that right to education is also sub part of right to life। but let me tell you कि back then in 1993 this right to education or primary education was just part of or just a subset of right to life। it was not recognized कि इसको एक स्पेशल आर्टिकल या सब आर्टिकल देने या उस लेवल का रिकॉग्निशन देने की जरूरत थी। but on a later stage in 2002 you will notice, or today what is the necessity of education or what role education does play in our lives, I need not to tell you, right? Hopefully all those who are watching this video will be graduates, because this video is being shot primarily for the UPSC। so all of you who are watching this video will be graduates। so graduate को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि what is the significance of education in our life, how it adds dignity, how it brings a respect, how it brings prosperity into our lives, how it improves the society, or how it helps society at large, I need not to tell you by highlighting the significance of education। here he was a boy, he was a chap of railway, he used to sleep on the railway platform, and today he is a IAS security guard son, becomes IPS in 2015। rickshaw son of a rickshaw puller becomes IAS in 2015। so this is the role of education, this is what education does to our society। so इन चीजों की इंपॉर्टेंस राइट टू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए by 86th constitutional amendment it was decided कि right to education which was until
until a subset of right to life should be given a separate recognition, and that was done by 86th constitutional amendment. अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो इन 1950 के एजुकेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था. ऑफ कोर्स एजुकेशन हैज बीन गिवन सम अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस, एंड यू हैव दिस आर्टिकल 45. आर्टिकल 45 की जैसे ही बात आती है, आर्टिकल 45 किस चीज का पार्ट है? दैट इज पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद डीपीएसपी, राइट. आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी के साथ डील करता है. सो आर्टिकल 45 डील्स विद डीपीएसपी. नाउ व्हाट इज दिस आर्टिकल 45 रीड्स? स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड free education, free compulsory education to the children in age group of 6 to 14. And this is what the article 45, when I am reading today, this is actually the old article, right? So state shall endeavor, the word that becomes important, that is endeavor. State ने कोशिश करनी है, ठीक है, स्टेट ने करना नहीं है. मीन्स यू कैन नॉट ड्रैग द स्टेट इन 1950 into the court कि भाई यहाँ कुछ ऐसा. The word wisely was written endeavor because at that back then in 1950 state did not have that level of resources कि इसको एक राइट, एक अधिकार के रूप में या फिर जस्टिसेबल राइट के रूप में इस राइट टू एजुकेशन या एजुकेशन को पार्ट 3 में डाला जाता. अगर पार्ट 3 में अगर डाला जाता तो क्या होता? पार्ट 3 में डालने पे आप स्टेट, कोई भी सिटीजन स्टेट को कोर्ट में ड्रैग करके है इसको पार्ट 3 में डाला गया है, दिस इज माई राइट एंड स्टेट इज नॉट प्रोवाइडिंग मी अ राइट टू एजुकेशन. सो दैट वाज नॉट पॉसिबल इन 1950 बिकॉज स्टेट डिड नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज. बहुत सारी अलग अलग फ्रंट्स पे हम लोग इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे थे. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, देन अदर हेल्थ डेवलपमेंट, देन देयर आर अदर प्रायोरिटीज. तो इसलिए उस एजुकेशन के वर्ड के लिए वर्ड यूज किया गया कि स्टेट शैल एंडेवर. नाउ कमिंग टू 2002 86th constitutional amendment, after different Supreme Court's suggestion or Supreme Court's advices, finally the wise legislature came up with 86th constitutional amendment in 2002. अब इसके साथ 86th constitutional amendment के साथ क्या होने वाला है? So 86th constitutional amendment is actually going to impact 3 articles. ठीक है, क्या क्या 3 आर्टिकल्स होंगे? तो पार्ट 3 को टच करेगा ये, पार्ट 4 को टच करेगा ये 86th constitutional amendment, एंड पार्ट 4A को भी टच करने वाला है. सो क्या क्या करने जा रहा है ये 86th constitutional amendment? So it will add in part 3, it will add article 21A into Indian constitution. Then second thing that it will do is कि article 45 which was talking about that state shall endeavor, तो उसका लैंग्वेज चेंज किया जाएगा. आर्टिकल 45 का लैंग्वेज चेंज करने जा रहे हैं. Then the third thing that this 86th constitutional amendment is going to do is that it is going to add another sub article into 4A. part 4A deals with what? Fundamental duties. So इसमें भी एक सब आर्टिकल ऐड किया जाएगा, that is article 51A, that is dealing with fundamental duties. article 51A के वाला जो आपका सब आर्टिकल है that will be added by 86th constitutional amendment. अब देख लेते हैं इन तीनों अमेंडमेंट्स ने या तीनों एडिशन या तीनों आर्टिकल्स ने क्या किया. So 21 added, 45 amended and 51A के added, that you can see here on the screen. So these 3 articles were impacted. So 21A add करके क्या किया गया? Because 21A अगर add कर रहे हो so this is going to be part of fundamental rights. So right to education is going to be now justiciable. Now onwards, that is 2002 onwards, it is going to be justiciable. अब यहाँ जो लैंग्वेज आप देखोगे, स्टेट शैल प्रोवाइड, नॉट द एंडेवर, राइट. एंडेवर वर्ड यूज नहीं किया गया बिकॉज एंडेवर वर्ड यहाँ डीपीएसपी में. सो स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इन सच मैनर एज स्टेट में बाई लॉ डिटरमिन, बाई लॉ डिटरमिन. सो इसको इम्पैक्ट में लाने के लिए, इस राइट को इम्पैक्ट में लाने के लिए एक लॉ भी स्टेट ने लाना पड़ेगा, एंड दैट लॉ विल बी ब्रॉट इनटू फॉर्म ऑफ राइट टू एजुकेशन, और वो 2009 में आएगा. बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी नॉट दिस सब आर्टिकल इज नॉट गोइंग टू बी अ सेल्फ एग्जीक्यूशनरी आर्टिकल. व्हाट इज दिस सेल्फ एग्जीक्यूशनरी और नॉन सेल्फ एग्जीक्यूशनरी, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अगर वो वीडियो नहीं देगा, अगेन यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल.
45 में क्या अमेंडमेंट करेंगे, तो 45 में जो वर्ड है एंडेवर, अब देखो यहाँ क्या बोला गया था कि 6 to 14 को एजुकेशन देनी है और कोशिश करना है, मतलब देनी एग्जैक्ट शॉर्ट नहीं है, कोशिश करना है। तो 6 to 14 वाले इस ग्रुप को तो आपने शिफ्ट कर दिया यहाँ कि भाई अब स्टेट की ड्यूटी हो गई है, प्राइमरी ड्यूटी उसको तो देना ही देना है इस फंडामेंटल। तो अब 45 को क्या करना है, सो 6 से 14 वाले क्राउड को ये कैटर कर रहा है 21A। सो डीपीएसपी में 45 को अमेंड किया जाएगा और बोलेगा कि वो बच्चे जो कि 6 साल से छोटे हैं उनका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर की जो प्लानिंग है वो आप करोगे। अब ये जो है डीपीएसपी में अर्ली चाइल्डहुड केयर को डाल दिया जाएगा। मींस अभी जो आपके डिफरेंट स्कीम्स चलते हैं आईसीडीएस वगैरह, जिसमें मदर्स की और छोटे बच्चों की इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, राइट, जिसमें छोटे बच्चे लैक्टेटिंग मदर्स की केयर रखी जाती है। सो वो वाली जो ड्यूटी है वो डीपीएसपी की वजह से है आज के डेट में, ठीक है। सो आर्टिकल 45 is going to be amended to introduce these schemes like ICDS, provision for early childhood care and education to children below 6 years. So below 6 years यहाँ and greater than 6 to 14 years यहाँ। Understood? Now 51A के क्यों ऐड किया गया, that is going to be fundamental duties part। तो A के इसलिए ऐड किया गया just to show, just a moment, कि पेरेंट्स की भी अब ड्यूटी होगी कि वो अपने वार्ड्स को स्कूल, अपने बच्चों को जो है जो कि 6 to 14 ईयर उनको स्कूल भेजे, राइट। सो दैट वाज अ ड्यूटी दैट हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द पेरेंट्स हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और द केस में भी वार्ड्स, मतलब गार्जियन भी है तो भी और पेरेंट्स हो तो भी आपकी ये ड्यूटी है कि आप स्कूल बच्चों को भेजो। एलिमेंट्री एजुकेशन अब स्टेट का ड्यूटी हो गई है, एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजो। और फाइनली जो कि मैंने बताया था कि इस 21 में जो गोल रखा गया है उसको मटेरियलाइज करने के लिए RT 2009 आता है, दैट वाज इनेबलिंग लॉ टू मटेरियलाइज गोल्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 21A। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर राइट टू एजुकेशन जो कि 21A में डील किया गया है। अगला वीडियो आर्टिकल 22 में होगा। सो अंटिल वी कम अप विद आर्टिकल 22 टिल देन बाय बाय।